سیکیورٹی ٹیم نے رپورٹ تیار کر لی، آج وزارت داخلہ کو پیش کرے گی۔ کراچی کو انشاءاللہ تعالی کچرے سے بھی پاک کریں گے اور ہر طرح کی خرافات سے بھی پاک کریں گے انشاءاللہ۔ اشاروں کنائیوں میں بات ہوگی۔ ایم کیو ایم ایک تیر سے کئی شکار کرنے کے لیے تیار، کراچی میں ذہنوں کو صاف کرنے کے لیے کل عوامی رابطہ مہم، جمعرات سے کلین کراچی کیمپین کا اعلان۔ فاروق ستار اشاروں کنائیوں میں بہت کچھ کہہ گئے۔ ایم کیو ایم کی بہت وکٹیں گریں گی، کئی رہنما رابطے میں ہیں۔ سانحہ بلدیہ کی جی آئی ٹی میں حقائق کو مسخ کیا گیا، انیس قائم خانی کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو۔ گھر کا ہی نہیں قوم کا بھی خادم ہوں، شہباز شریف کا فضل الرحمان کو جواب۔ انتہا پسندی جیسے چیلنجز کا سامنا ہے، سوچ میں تبدیلی لانا ہوگی۔ عالمی یوم خواتین پر تقریب سے خطاب۔ پاکستان کی سرزمین سے دہشت گردی کو مکمل طور پر ختم کریں گے، سیاسی اور عسکری قیادت کا عزم۔ شوال میں پاک فوج اور فضائیہ کی کارروائی، 21 دہشت گرد ہلاک۔ برطانوی وزیر خارجہ کی سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں، دہشت گردی کے خلاف پاک فوج کی قربانیوں کا اعتراف۔ فلپ ہیمنڈ کہتے ہیں غیر ریاستی عناصر کو خارجہ پالیسی پر مسلط نہیں ہونے دیں گے۔ آئی جی سندھ کی دوسری رپورٹ بھی کاغذ کا ٹکڑا قرار، سپریم کورٹ نے مسترد ہی کر دی۔ رینجرز اختیارات کا معاملہ وفاق اور صوبائی حکومتیں طے کریں، عدالت کے ریمارک۔ بری صحبت کا برا نتیجہ، رحیم یار خان میں شوہر نے جوئے میں بیوی ہار دی، ملزم باپ سمیت گرفتار۔ ایجوکیشن بل کے خلاف پنجاب بھر میں بیشتر نجی اسکول بند، جائز مطالبات تسلیم کریں اور آئینی حق دیں، آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز فیڈریشن کا مطالبہ۔ اور خواتین کے عالمی دن پر ملک بھر میں تقاریب، پشاور میں ہر طرف علاقائی ثقافت کے رنگ۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو اہم اور بڑی خبر دیں کہ سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے بیٹے شہباز تاثیر کو بلوچستان کے علاقے کچلاک سے بازیاب کرا لیا گیا ہے۔ آپ کو یاد دلائیں کہ سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے بیٹے کو لاہور سے اغوا کر لیا گیا تھا، دن دہاڑے اغوا کی یہ واردات ہوئی تھی اور اب شہباز تاثیر کو بلوچستان کے علاقے کچلاک سے بازیاب کرا لیا گیا ہے۔ آپ کو بڑی خبر دے رہے ہیں، سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے بیٹے شہباز تاثیر کو بلوچستان کے علاقے کچلاک سے بازیاب کرا لیا گیا ہے۔ شہباز تاثیر کو لاہور کے علاقے گلبرگ سے اغوا کیا گیا تھا اور اب شہباز تاثیر کو کچلاک سے بازیاب کرا لیا گیا ہے۔ بیورو چیف کوئٹہ عرفان سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عرفان، 2011 میں اغوا کیا گیا تھا اور اب بالآخر بازیاب کرا لیا گیا ہے، مزید کیا پتہ چل پایا ہے؟ جی بالکل، سلمان تاثیر جو سابق گورنر پنجاب تھے، ان کے صاحبزادے شہباز تاثیر جنہیں 2011 میں نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا تھا لاہور سے، کوئٹہ کے قریب جو علاقہ ہے کچلاک، وہاں پر حساس اداروں نے ایک کارروائی کرتے ہوئے شہباز تاثیر کو بحفاظت بازیاب کرا لیا ہے۔ اور اس حوالے سے یہ بھی آپ کو بتاتا چلو کہ اغوا کاروں کی طرف سے 50 کروڑ روپے تاوان کا بھی مطالبہ کیا گیا تھا جو پورا نہیں کیا گیا، لیکن اس وقت جو کارروائی کی گئی حساس اداروں کی اطلاعات پر یہ کارروائی کی گئی ہے اور اس میں سیکیورٹی فورسز نے بھی اس آپریشن میں حصہ لیا۔ تاحال اب تک کوئی گرفتاری کے حوالے سے کوئی اطلاعات موصول نہیں ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے ہی ہماری جو ہمیں معلومات ملی ہیں اس میں یہ بتایا گیا کہ سابق گورنر کے جو صاحبزادے شہباز تاثیر انہیں باحفاظت سیکیورٹی فورسز نے بازیاب کرا لیا ہے اور یہ کوئٹہ کے قریب علاقہ ہے کچلاک جہاں پر یہ کارروائی کی گئی ہے۔ جی اچھا عرفان، ان اداروں کی جانب سے شہباز تاثیر کی صحت کے حوالے سے بھی کچھ بتایا گیا ہے؟
जी बिल्कुल, इस हवाले से जो जिन जराए से हमारी बात हुई और जिन फोर्सेज ने और हसास इदारों ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया, उनसे हमारी जो बात हुई, उनका ये कहना है कि उनके जो साहबजादे हैं वो बिल्कुल खैरियत से हैं साबिक गवर्नर के, और इस वक्त उनकी तहवील में शाम तक उन्हें कोयटा पहुंचाया जाएगा, और इस वक्त भी उन्हें यहाँ पर कोयटा में ला के महफूज मकाम पर रखा जाएगा। मजीद मालूमात जो मीडिया को फराहम की जाएंगी वो अब से कुछ देर बाद बाकायदा तौर पर सूबाई हुकूमत की जानिब से भी की जाएंगी, और हसास इदारे जो मालूमात फराहम करेंगे उस हवाले से बताया जाएगा मीडिया को भी कि उनकी सेहत के बारे में इस वक्त जो हमें हमारे जराए ने बताया कि वो बिल्कुल खैरियत से है और उनकी सेहत भी ठीक है। और इस सिलसिले में इरफान, अब ज़ाहिर उनके अहले खाना को भी खबर कर दी गई होगी इस सिलसिले में, ताकि उनसे भी फौरी तौर पर मुलाकात कराई जा सके। जी बिल्कुल, यकीनन ये एक बहुत बड़ी खबर है, और 2011 से ये अगवा का मामला था और बड़ा इस हवाले से सिक्योरिटी फोर्सेज ने मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन भी किए, और ये खदशा भी जाहिर किया जा रहा था कि साबिक गवर्नर के जो साहबजादे उन्हें अफगानिस्तान ना मुंतकिल कर दिया गया हो। ताहम इस लीड पर भी काम किया जाता है, लेकिन आज जो सिक्योरिटी फोर्सेज और हसास इदारों को एक बड़ी कामयाबी मिली, उसमें ये एक उनके लिए खुशाइन बात थी कि उनके जो साबिक गवर्नर के जो साहबजादे शहबाज तासीर वो बिल्कुल खैरियत से हैं, और उन्हें बाहिफाजत इस ऑपरेशन के दौरान बाजियाब करा लिया गया है, और अब से कुछ देर बाद उन्हें कुचलाक से कोयटा मुंतकिल किया जाएगा, जहां पर यकीनन उनके खानदान के अफराद को भी उनसे भी राब्ता किया जा रहा होगा, और उन्हें भी कोयटा उनसे मुलाकात, या इनको ज्यादा इम्कान यही है कि इनको बाहिफाजत फौरी तौर पर कोयटा मुंतकिल करने के बाद लाहौर मुंतकिल किया जाएगा। ठीक है इरफान, आप साथ ही रहिएगा। अपने नाज़रीन को हम ये बताएं अब तक की सबसे बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। साबिक गवर्नर पंजाब सलमान तासीर के बेटे शहबाज तासीर को बाजियाब करा लिया गया है। 26 अगस्त 2011 को गुलबर्ग के इलाके में शहबाज तासीर को उनकी गाड़ी से अगवा किया गया था। उनकी गाड़ी को आप टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, LZT1 उनकी गाड़ी का नंबर है। इस गाड़ी से अगवाकारों ने शहबाज तासीर को उतारा और अपने साथ ले गए, और अब शहबाज तासीर को बलूचिस्तान के इलाके कुचलाक से बाजियाब कराया गया है। हसास इदारों ने यह कार्रवाई की है। आपको यह भी बताएं कि मुतादिद बार उनकी बाजियाबी के लिए कोशिशें की जाती रही। अगवाकारों की जानिब से 50 करोड़ रुपए तावान भी तलब किया गया। इसी बारे में बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर रोजनामा दुनिया सलमान गनी अब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सलमान गनी साहब, कितनी बड़ी डेवलपमेंट है आपके ख्याल में? गो के 4.5 साल का अरसा लगा बाजियाब कराने में। देखें, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और ये पाकिस्तान के हसास अदारों की बहुत बड़ी कामयाबी है। जब से ज़रबे अज़ब शुरू हुआ है उस वक्त से ये लोग दहशतगर्द, तखरीबकार, शिद्दत पसंद जो है भाग दौड़ करते नजर आ रहे हैं। और ये कचलाक बलूचिस्तान का इलाका है। इससे पहले जो खबरें आ रही थी उसमें ये कहा गया था कि ये अफगानिस्तान के किसी इलाके में है। मैं समझता हूँ कि जूं ज़रबे अज़ब अपने फैसलाकुन मरहले में दाखिल हो रहा है, जहाँ पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम आ रहा है, वहाँ इसी तरह के जो क्राइम्स ये लोग करते रहे हैं वो भी सामने आने शुरू हो गए हैं। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के सियासतदारों की बड़ी कामयाबियों में से एक है। इससे पहले खुद शहबाज तासीर के हवाले से इस तरह की खबरें आ रही थी कि 50 करोड़ रुपए उन्होंने मांगा, डिमांड की थी, और ये भी खबरें थी कुछ दिन पहले के शायद उन्हें दुबई मुंतकिल कर दिया गया है। मैं समझता हूँ कि ज़रबे अज़ब अपने फैसलाकुन मरहले पे है, और इस तरह के क्राइम जो दहशतगर्द करते आ रहे थे उनका भी सद्देबाब मुमकिन होगा। तो सलमान गनी साहब, हम ये समझें कि अब आने वाले दिनों में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे को भी बाजियाब करा लिया जाएगा? देखिए, सार्स अदारे जो अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए हैं, फाटा इलाकों में उन्होंने अमन बहाल किया है, बलूचिस्तान और दीगर इलाकों के अंदर भी वो दहशतगर्दों के सद्देबाब के लिए सरगर्म अमल है। मैं समझता हूँ कि ये कार्रवाई भी उन्हें ये तो नहीं शायद इल्म था कि शहबाज तासीर यहाँ पर मौजूद है, लेकिन ये दहशतगर्द तखरीबकार भाग रहे हैं अपने ठिकानों से, और इसी कार्रवाई के दौरान शहबाज तासीर उन्हें मिले। और मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है कि इसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे भी बाजियाब होने चाहिए, और भी लोग इन्होंने अगवा किए हुए हैं। देखें, मुख्तलिफ लोग इन्होंने ये दौलत के असूल की खातिर, और ये दौलत ये जो है ये दहशतगर्दी में इस्तेमाल होती थी, दहशतगर्दी का सद्देबाब भी होना चाहिए, और अगवा को नुकसान को भी वापस आने चाहिए, और अगवा बराए तावान की बातों का भी मुश्किल बुनियादों पर सद्देबाब होना चाहिए। और अगवा बराए तावान के लिए जब इस तरह से वारदातें होती हैं, उसमें हमने देखा कि 50 करोड़ रुपए तावान मांगा गया था, ये रकम अदा नहीं की गई, उसके बगैर ही जो है वो बाजियाब करा लिया गया। ये कितनी बड़ी कारी ज़र्ब होती है उन लोगों के ऊपर जो कि ये जराइम करते हैं या वारदात करते हैं?
देखें, ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि जिस वक्त पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी पीक पे थी और इन्होंने एक तरफ ये रकम के असूल का जरिया बनाया था, दूसरी तरफ वो पाकिस्तान के अंदर खौफ और राज से पैदा कर रहे थे और खौफ और राज का बायस बन रहे थे। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के एहसासदारों की बड़ी कामयाबी है। यकीनन बगैर पैसों के ये जो कामयाबी हुई है, आज उनके घर के अंदर तो ईद का समा होगा। यूसुफ रजा गिलानी साहब के साहबजादे को भी बाजियाब होना चाहिए और मैं समझता हूँ कि जूं ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी, पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम आएगा, पाकिस्तान के अंदर जो खास तौर पे कत्ल गारत और दीगर जो इस तरह के अवामल थे उनका भी मुश्किल बुनियादों पर सदेबाप किया जा सकेगा। सलमान गानी साहब, इस कार्रवाई के बाद हम क्या समझते हैं? ये बहुत बड़ी कामयाबी है हमारे इदारों की। अब इस कार्रवाई के बाद मोराल कितना अप होगा? देखिए, पाकिस्तान के अदारों की सबसे बड़ी कामयाबी तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा वक्त था कि कोई दिन ऐसा नहीं जाता था जब दहशतगर्दी की कोई बड़ी वारदात ना होती हो, कोई खुदकश बम धमाका ना होता हो, लेकिन अब ऐसे नहीं होता है। मैं समझता हूँ कि ये क्रेडिट पाकिस्तान के एहसासदारों को है और यकीनन जब अमनो इस्तेहकाम कायम होगा तो पाकिस्तान के अंदर तरक्की और खुशहाली का अमल तेज होगा। इस तरह अगवा बराए तावान और दीगर जो जराइम की सूरत हाल है उसका भी मुश्किल बुनियादों पर सदेबाब होगा। और इसको सलमान गनी साहब पॉलिटिकली आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि 2011 में जब अगवा किया गया था तो उस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और अब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है, तो ये आपको लगता है कि पॉलिटिकली भी फायदा पहुंचाती है उस हुकूमत को जो कि हुकूमत कर रही होती है? देखिए, ये बराह रास्त से क्रेडिट तो आपके एहसासदारों का है और उनका कोई इसमें लालच नहीं था। देखें, वो तो बिला दरेक अपना जो एक ऑपरेशन जारी किए हुए हैं, कराची से लेकर खैबर तक जो एक खौफ और राज की फजा थी पाकिस्तान में वो खत्म हुई है और इस कार्रवाई के बाद यकीनन ये इनका एक बहुत बड़ा क्रेडिट है और जब आपके एहसासदारों का क्रेडिट होगा तो वो यकीनन पाकिस्तान की हुकूमत का भी क्रेडिट है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की फौज ने ज़रबे अज़ब के नतीजे में पाकिस्तान के अंदर अमनो इस्तेहकाम कायम कर दिया है और सलमान समझता हूं कि ये अब मुश्किल बुनियादों पर पाकिस्तान में अमन कायम करने के लिए सिविलियन अदारों और खुसूसन पुलिस को भी अपनी कारकर्दगी जो है बेहतर बनाना पड़ेगी। ठीक है, सलमान गनी साहब बहुत शुक्रिया आपका। सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं और मौजूदा सूरत हाल के ऊपर वो अपनी राय का इज़हार कर रहे थे, तज्जिया कर रहे थे कि ये कितनी अहम डेवलपमेंट है, न सिर्फ ये कि हसास इदारों के लिए जिन्होंने ये कार्रवाई की बल्कि पूरे मुल्क के लिए। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से ऑपरेशन ज़रबे अज़ब जारी है, उसमें अहम कार्रवाइयाँ की गई। न सिर्फ ये कि दहशत गर्दों का कलाकमा किया गया बल्कि जिन इलाकों में ऑपरेशन किया गया वहाँ पर मुकम्मल तौर पर सफाई की गई। ये भी मुमकिन बनाया गया, इस बात पर भी लोगों को मुतमईन किया गया कि जो लोग अपने इलाके छोड़कर गए हैं वो अब अपने इलाकों में आहिस्ता आहिस्ता वापस जा रहे हैं, आबाद हो रहे हैं। और इसी सिलसिले की ये कड़ी कि हसास इदारों की जानिब से ये कार्रवाई की गई कि पिछले 4.5 साल से अगवा किए गए एक अहम शख्सियत को बाजियाब कराया गया है। तो ये न सिर्फ हसास इदारों की बल्कि मुल्क में कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए उनके मोराल को हाई करने के लिए इंतहाई अहम कार्रवाई की गई है। सलमान गनी साहब भी हमसे बात कर रहे थे, उनका ये कहना था कि ज़रबे अज़ब फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है और अब साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी के बेटे को भी बाजियाब होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हसास इदारों की यकीनी तौर पर ये एक बड़ी कामयाबी है और इससे ये मालूम होता है कि दहशतगर्द अब पसपा हो रहे हैं। और इसी सूरत हाल के हवाले से उन्होंने कहा कि अब साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी के बेटे को भी बाजियाब होना चाहिए। आपको बताएं कि शहबाज तासीर को लाहौर के इलाके गुलबर्ग से 26 अगस्त 2011 को अगवा किया गया था। अगवाकार उन्हें उनकी गाड़ी में से निकाल कर अपने साथ ले गए थे। अगवाकारों ने शहबाज तासीर की रिहाई के लिए 50 करोड़ रुपए तावान भी मांगा था और ये इत्तलात भी थी कि कैदियों की रिहाई का मुतालबा भी किया गया था। इरफान सईद ब्यूरो चीफ कोयटा एक बार फिर हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। इरफान, अब जाहिर है जब मजीद बातें खुलेंगी तो ये भी पता चलेगा कि शहबाज तासीर को क्या सिर्फ एक ही इलाके में रखा गया या जिस तरह से बातें आ रही थी सामने कि उन्हें शिफ्ट करते रहे, क्योंकि अगवाकार आमतौर पर यही करते हैं कि एक जगह पर जो है वो नहीं रहते, लोकेशन अपनी चेंज करते रहते हैं ताकि उन्हें कोई पकड़ ना सके। ये बातें भी आहिस्ता आहिस्ता जब सामने आएंगी तो मालूम हो जाएंगी। बिल्कुल, यकीनन ये जो वाकया था ये तकरीबन 2011 में जब ये वाकया हुआ तो उस वक्त से ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि शहबाज तासीर को अफगानिस्तान कहीं मुंतकिल कर दिया गया, क्योंकि सिक्योरिटी जो जराए जो थे और इस हवाले से जो ऑपरेशन मुख्तलिफ इलाकों में भी किए जाते रहे उसमें भी यही लीड मिल रही थी कि शहबाज तासीर को मुख्तलिफ एरिया से मुंतकिल करते हुए अफगानिस्तान मुंतकिल कर दिया गया है। लेकिन आज बहुत बड़ी इस इलाके जहां पर ये ऑपरेशन किया गया कुचलाक में, यहाँ पर काफी अरसे से रेकी भी की जा रही थी और मुख्तलिफ इंटेलिजेंस इदारों के दरमियान राब्ते भी किए जा रहे थे। और आज के दिन
जब ये ऑपरेशन का फैसला किया गया, इस हवाले से पूरी होमवर्क किया गया था सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। कुचलाक एरिया यहाँ पर जो पहले से भी लोगों के जो खदशात थे कि यहाँ पर जो क्रिमिनल्स जो ग्रुप्स हैं उनके ठिकाने हैं, और इस पे मुख्तलिफ इदारों की तरफ से भी रिपोर्टें भी मुरतब की जाती रही हैं और यहाँ पर गाए बगाए ऑपरेशन भी होते रहे। लेकिन आज जो शहबाज तासीर के हवाले से जो ऑपरेशन किया गया है, इसके लिए काफी अरसे से बताया, जो हमारे जराए बता रहे कि हिकमत अमली तय की जा रही थी और इस एरिया में खदशा जाहिर किया जाता रहा था कि कोई अहम शख्सियत को यहाँ पर जो क्रिमिनल गैंग्स है उन्होंने यहाँ पर रखा हुआ है। इसी बुनियाद पर आज इस ऑपरेशन में अच्छा इरफान, ऑपरेशन में बाजियाब तो करा लिया गया शहबाज तासीर